Hello children, I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Understanding Elementary Shapes. In the previous chapter, we have studied some basic geometrical concepts like point, line segment, line, ray, angle, etc. In this chapter, we will focus on their size, kinds and measurement along with different 3D shapes like sphere, cube, cuboid, etc. which play crucial role in geometry. प्रीवियस चैप्टर में आप कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ के आए थे, तो इसके बाद अब जो है हम कुछ और शेप्स के ऊपर जाएंगे, उनके डिफरेंट काइंड्स, उनके साइजेस के बारे में पढ़ेंगे. Line segment, comparison of line segments. Comparing two or more line segment means to find out which of them is the shortest and which is the longest. Here are three methods of comparing the line segments: comparison by observation, comparison by tracing, comparison by divider. अब लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, तो कैसे करेंगे? बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके, या तो ऑपोजिट ट्रेस कीजिए या फिर डिवाइडेड के थ्रू. कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. लुक एट द सेगमेंट्स गिवन बिलो. अच्छा, आपको ये सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स दे रखी हैं, राइट? अब आप इनको देख के बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है. चलिए, इसमें तो आपने बता दिया कि ये सी डी बड़ी है, ए बी छोटी है, बट इन दोनों में कैसे पता चलेगा? Here, simply by observing the figure A, we can say that line segment CD is longer than the line segment AB, but in figure B, it is very difficult to say which is longer. The reason behind it is that the difference in the lengths of the both line segments X, Y and ST is very small. So this method is failed on such type of line segments, and to compare such line segments, better methods are adopted. Second, comparison by tracing. Suppose we have to compare the given line segments by using tracing paper. Here, we use the following steps. Place the tracing paper on line segment PQ and trace it on the tracing paper. Now place this tracing paper over MN such that P and M coincide and PQ falls along MN. We observe that PQ is greater than MN. अब ट्रेसिंग से कैसे पता चलेगा? जब हमने ट्रेसिंग किया, ट्रेसिंग पेपर रखे, तो हमें पता चला कि जो PQ है वो PN से MN से ग्रेटर है. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन by divider. The comparison by using the divider is the accurate method to compare the line segment. Let's compare the given line segments by this method. In this method, we follow the given steps. Place the end point of one arm of the divider at E. Open the divider so that the end point of the other arm reaches at the other point F. Without disturbing the opening of the divider, lift it and place the end point of the arm at O and see where the other end falls. एक्यूरेट मेथड होता है एक्चुअली डिवाइडर यूज़ करके. आप कैसे करेंगे? इस तरह से डिवाइडर को आप ओपन करेंगे, एक पॉइंट आपका क्या होगा ई पर और आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो एफ पर, राइट? और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ओ पी इज ग्रेटर देन ई एफ. मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. टू मेजर अ लाइन सेगमेंट वी नीड अ रूलर. रूलर इज अ सिंपल मेजरिंग डिवाइस. इट्स वन एज इज मार्क्ड in centimeters and each centimeters is divided into 10 equal small divisions called millimeters. The other edge of the ruler is marked in inches. Conventionally, we use centimeters for measuring line segments. Suppose we are to measure a given line segment AV, so we follow the given steps. Place the ruler on the line segment such that 0 centimeter of the ruler coincides with point A. देखिए, रूलर स्केल आपके पास होता है, सभी के पास होता है. एक्चुअली इस आपका ये मेथड यूज़ करते हैं हम लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए. अगर आपको एक लाइन सेगमेंट मेजर करनी है तो आप कैसे करेंगे? जैसे आपको ए बी दिया है तो आप ए पे रखेंगे 0 सेंटीमीटर और उसके बाद जितना भी उसका लेंथ होगा वो सेकेंड पॉइंट उस पर आ जाएगा. नाउ रीड द मार्क ऑन रूलर विच coincides with B. We can see only B coincides with 7th smaller division after 3. It shows B is at 3.7. So length of AB is equals to 3.7 centimeter. तो जब आप रूलर से मेजर करेंगे तो आपको लेंथ मिलेगी 3.7. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग अ डिवाइडर कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज साइंस. ओके, अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है. ऑफ कोर्स CD बड़ा है, राइट? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? GH बड़ा है. आपने वैसे कंपेयर करना है डिवाइडर से, राइट? क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर द टू गिवन पॉइंट्स AB एंड CD by observation by tracing using divider. राइट द स्टेप्स ऑल्सो. अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन से बताना कौन सा बड़ा है, कंपेयर करना है. ओके, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन से करें तो बहुत ही जो है ना माइन्यूट सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी. फिर आप ट्रेसिंग से करेंगे, डिवाइडर का यूज़ करके करेंगे. ओके, इसे तो आप खुद से करेंगे. एंगल
Magnitude of an angle. Consider a ray OA. Let it rotate about its endpoint O to have its new position OA dash. The amount of rotation through which OA is rotated about O determines the magnitude of the angle AOA dash. The magnitude, यानी कि size of an angle is the amount of rotation of the line. It depends upon the inclination between the two arms of the angle. It doesn't depend upon the length of the arm of the angle. ओके अब एंगल का जो मैग्नीट्यूड है हम वो कैसे नापेंगे? एक्चुअली ये आपको दिख रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड. अब उसकी आर्म्स कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपैरिजन ऑफ एंगल्स. हियर आर टू मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग द एंगल्स. कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. दो मेथड है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड ट्रेसिंग के थ्रू. Comparison by observation, the angle which has greater magnitude will be greater, or the angle which has more opening between the arms of the angle is greater. Look at the given angles. अगर आप दोनों angles में से बताएंगे तो कौन सा बड़ा है आपका? Of course आपका angle 2 is greater than angle 1. आप उसके बता सकते हैं कितनी उसकी opening है, right? Next is comparison by tracing. Suppose we have to compare the given angles by using tracing paper. Here we use the following steps. Place the tracing paper on any one of the angle. Let we place it on angle RST and trace it on the tracing paper. Now place the tracing paper over AOB such that S coincides with point O and arm SR coincide with arm OA. देखिए आपको ट्रेसिंग पेपर को कहाँ पे रखना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर को आपने कोई भी एक एंगल ले लीजिए, जैसे कि उसमें लिया गया है RST, राइट. और उसके बाद आपने उसको ट्रेस करना है ट्रेसिंग पेपर पे. फिर आपने ट्रेसिंग पेपर को एंगल AOB पे रखना है, ओके. और उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा एंगल आपका बड़ा आता है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा आता है. We observe that ray ST lies between ray OA and ray OB. Therefore, angle RST is less than angle AOB. Protractor is a geometrical instrument which is used for measuring and constructing the angles of given measurement. It looks like a letter of the English alphabet D, that is semicircular in shape. It is made up of plastic or metal. It is divided into 180 equal parts. The value of each part is 1 degree. Hence, the angles are marked from 0 degree to 180 degree on the edge of semicircle in clockwise as well as semi-clockwise direction. D आपने देखा है. D से क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स इन द शेप ऑफ D. एक्चुअली दिस इज प्रोटेक्टर और इसमें 180 डिविजन्स है आपके दोनों साइड से. अगर आप क्लॉकवाइज भी जाते हैं तो भी 0 से लेके 180 डिग्री तक आपके इसमें डिविजन्स हैं. एंड आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी आपके 0 से लेके 180 डिग्री तक के डिविजन्स हैं. मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. देयर आर 2 cases to measure an angle. Let's see. Case 1, when the given angle is less than 180. मेजर द गिवन एंगल्स. देखिए हम कब मेजर करते हैं, अगर कोई भी एंगल 180 से कम हो तो, क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्टर की एक लिमिटेशन है 180 तक के एंगल की, ठीक है. अगर आप इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे तो देखिए क्या आपको पता पड़ेगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है, एंगल AOB को. देन आप मेजर करेंगे एंगल AOB, राइट. और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा एंगल आपका बड़ा है, राइट. तो ये होगा आपके प्रोटेक्टर की हेल्प से. रिमेंबर दैट इफ द वर्टेक्स इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, read the protector anti-clockwise. If the vertex is on right side, read the protector clockwise. अगर vertex आपका कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो आप कैसे करेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज उसको रीड करेंगे. और वर्टेक्स अगर राइट साइड में है तो फिर आप उसे क्लॉकवाइज रीड करेंगे. केस 2, व्हेन द गिवन एंगल इज ग्रेटर देन 180. अब केस 2, जब आपका गिवन एंगल 180 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे. देखिए मेजर द गिवन एंगल. इसको कैसे मेजर किया गया है, देखिए. To measure the above angle, we follow the given steps. We know the complete angle is of 360 degree. We measure the remaining angle, that is place the protector downwards coincides its baseline with OA and midpoint with the vertex of the angle AOB. देखिए complete angle आपको पता है 360 डिग्री का होता है ना. तो हम क्या करेंगे, जो remaining angle है हम उसे measure करेंगे. Now read the scale. Where side OB coincides, it is 110. Thus angle AOB is equals to 360 minus 110. देखिए इस तरह से जब आपने इसको मेजर किया तो ये 110 का आया. और आपको पता है जो कंप्लीट जो आपका एंगल AOB होगा वो क्या होगा, आपका 360 में से हम माइनस कर देंगे 110, तो तब आपका आएगा 250 डिग्री. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. द एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मेजर.
acute angle, an angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. It is called an acute angle. In the figure, angle AOB is an acute angle. Acute angle कौन सा होता है? जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है but 90 से कम होता है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स दिए गए. नेक्स्ट इज राइट एंगल. An angle whose measure is exactly 90 degree is called a right angle. In the figure, angle AOB is a right angle. Right angle आपका हमेशा ऐसे straight होता है. राइट एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है, राइट. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. इन द गिवन फिगर, एंगल एओबी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 है, हमेशा देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज 180. रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल आपके 180 से तो बड़े होते हैं बट 360 से छोटे होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, राइट. नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. जैसे कि आपका ये है, कंप्लीट एंगल आपका हमेशा 360 का होता है, राइट. जीरो एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल. इन द गिवन फिगर, एंगल एओबी इज अ जीरो एंगल. जीरो एंगल जिसका मेजर बिल्कुल जीरो हो, दैट इज जीरो एंगल. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. बाय ऑब्जर्विंग or using tracing paper, find which angle has a greater magnitude in each pair given below. Okay, चलिए अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आपको बताना है ना. ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि ये जो एंगल है आपका ये बड़ा है. इसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर का भी यूज़ करना है. अच्छा, अब इन दोनों एंगल्स में से बताएंगे आप कौन सा बड़ा होगा. मेजर करके देखिए, ऑब्जर्व करके आपको लगेगा कि ये एंगल बड़ा है बट नो, दिस एंगल इज ग्रेटर बिकॉज देखिए उसका मेजर जब आप मेजर करेंगे ना तो वो ज़्यादा आएगा आपका. Question number 2, by observation find which angle is acute and which is obtuse. सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आपको बताना है. देखिए ये 90 डिग्री से कम है, दिस इज acute. ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, दिस इज obtuse. Question number 3, measure the following angles with the help of protractor. इनका आपको मेजर बताना है प्रोटेक्टर की यूज करके. Pairs of line. There are 4 pairs of lines: intersecting lines, perpendicular lines, parallel lines, skewed lines. अब इन 4 में से इन 3 के बारे में तो आप पढ़ चुके थे प्रीवियस चैप्टर में, है ना. चलिए देखते हैं. Intersecting lines. If two lines intersect each other at a point, then the lines are called intersecting lines. इस तरह से जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इन्हें intersecting lines कहते हैं. Perpendicular lines. If two lines are intersecting at right angles, then the lines are said to be perpendicular to each other. अगर दो lines एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक राइट एंगल बनाती हैं, ओके, तो उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर. In the given figure, line AB and CD are intersecting at 90 degrees, so AB and CD are perpendicular lines. We can write it as AB perpendicular CD or CD perpendicular to AB. देखिए परपेंडिकुलर का आपका साइन होता है, ओके. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके परपेंडिकुलर लाइंस की, जैसे कि इरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल ऑन द ग्राउंड, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए पोस्ट कार्ड और विकेट्स ऑन क्रिकेट पिच एटसेट्रा. Perpendicular bisector. If a line intersects other line at 90 degree such that it divides the line into 2 equal parts, then that line is called perpendicular bisector of the line. For example, AB perpendicular PQ and AB divides PQ into 2 equal parts, or AB bisects PQ. Therefore, AB is perpendicular bisector of PQ. अच्छा, perpendicular bisector किसे कहते हैं? देखिए जब एक लाइन जो है दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे और इस तरह से करती है कि वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे कि आपके जो AB है एंड दिस इज PQ, राइट. आपका जो है AB परपेंडिकुलर है PQ पे और AB जो है वो डिवाइड कर रही है PQ को बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में, ओके. चलिए नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. इफ टू लाइंस नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम. As shown in the figure, line AB and CD are equidistant from each other. So AB and CD are parallel lines. We can write it as AB parallel CD or CD parallel AB. देखिए ये परपेंडिकुलर का साइन था, अब पैरेलल का साइन इस तरह से होता है. AB पैरेलल है CD के
एंड आपको जैसे प्रीवियस चैप्टर में बताया था पैरेलल लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है एकदम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल. Okay, next is measuring the distance between parallel lines. There are two methods to measure the distance between parallel lines. Method 1. Measure the perpendicular distance between two parallel lines using scale. Suppose we have to measure the distance between two parallel lines P and Q. Will follow the given procedure. Take a point O on line Q. From Q, draw OQ perpendicular to Q, meeting line P at Q. Measure the line segment OQ. Take another point L on the line Q. From L, draw LM perpendicular to Q, meeting line P at M. Measure the line segment LM. We find that OQ is equals to LM is equals to 1.1 centimeter. The distance between P and Q is equals to 1.1 centimeter. देखिए पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस पहले मेथड से करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका निकालेंगे. ठीक है, ये इस तरह से इनको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसके बाद जब OQ एंड LM का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे जो लाइन सेगमेंट से, तो दोनों इक्वल आएगा. सेकेंड मेथड इज मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यूजिंग सेट स्क्वायर. Suppose we have to measure the distance between two parallel lines L and M. We follow the given procedure. Place a ruler with one of the measuring edge lies along M and hold it firmly with one hand. Now place the set square with one arm of right angle coinciding with edge of the ruler. Draw the line segment PQ along the other arm of right angle of set square as shown in the figure and measure it. Now slide the set square along the ruler and draw some more line segments CRS etc. and measure them. अच्छा, अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस मेजर करना है जो पैरेलल लाइंस है आपके पास L and M. तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे रूलर का और आपके पास होना चाहिए सेट स्क्वायर. ओके, तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रूलर है आपको मेजरिंग एज पे रखना है, इसको फॉर्मली एक हाथ से आपने होल्ड करके रखना है. उसके बाद जो सेट स्क्वायर है वो आपको राइट एंगल पे रखना है जिससे कि जो एज है रूलर का वो कोइंसाइड हो. उसके बाद आप उस पर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिस तरह से देखिए आपको फिगर में इस तरह से दिखाया गया है ना. तो इस तरह से आपको करना और फिर जब आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस होगा ना दोनों के बीच का PQ एंड RS का वो सेम आएगा. Skewed lines. Two lines in two different planes which are neither parallel nor intersecting are called skewed lines. दो लाइंस जो दो डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं जो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग, उन्हें कहते हैं skewed lines. Now transversal line, a line which intersects two or more parallel or non-parallel lines at distinct point is called a transversal line. Transversal line उसे कहते हैं जो किसी पैरेलल या फिर नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे कि Q आपकी ट्रांसवर्सल है, देखिए Q जो है ये दो लाइन सेगमेंट्स को आपका क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, सो हियर Q इज ट्रांसवर्सल टू नॉन पैरेलल लाइंस M and N व्हिच इंटरसेक्ट्स M and N एट A and B रेस्पेक्टिवली. अब M and N जो है वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं एंड Q उसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है A and B पे. Here M is transversal to parallel lines P and Q which intersects P and Q at A and B respectively. अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और M इसे इंटरसेक्ट कर रहा है A और B पॉइंट्स में. Next, here Q is transversal to parallel line M and P which intersects M and P at A and B C respectively. इसके बाद देखिए आपकी जो Q है ये ट्रांसवर्सल है, जो आपकी दो तीन पैरेलल लाइंस हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C पे. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Which of the following represents perpendicular line? जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं आपकी टेबल टॉप की, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस को या नहीं. इसके बाद है द इंग्लिश लेटर T. क्या इंग्लिश लेटर T इस तरह से बना है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये आप इसे खुद बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. अपने सराउंडिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड थ्रू योर ऑब्जर्वेशन आपको ये बताना है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है. ओनली टू एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट द नंबर ऑफ लाइंस perpendicular to the line segment AB and name them. देखिए AB पे आपकी कितनी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, आपके उन्हें नाम लिखने हैं. Triangles. We know that triangle is a polygon with 3 sides and 3 vertices. We also know that sum of the angles of a triangle is 180. Now let's see the classification of triangles. Classification of triangles. Triangles can be classified in 2 ways, on the basis of sides, on the basis of angles. ट्राइंगल आपको पता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स होते हैं, राइट. इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके साइड के बेसिस पे या फिर एंगल्स के बेसिस पे. Classification of triangles on the basis of sides. A scalene triangle, a triangle which has
unequal sides, that is all the three sides are of different length, is called a scalene triangle. Scalene triangle आपका वो होता है जिसकी तीनों ही sides different होती हैं. Isosceles triangle, a triangle which has two sides equal length, is called isosceles triangle. Isosceles triangle जिसकी दो sides equal होती हैं, right? Equilateral triangle, a triangle which has all the three sides of equal length, is called an equilateral triangle. और equilateral triangle की तीनों ही sides आपकी equal होती है. Remember that equilateral triangle is also known as equiangular triangle because it's all the three sides are equal and each of the angle is equal to 60 degree. जो आपका equilateral triangle होता है जिसकी तीनों sides equal होती हैं, उसके तीनों ही angles भी equal होते हैं. Classification of triangles on the basis of angles. Acute angle triangle, a triangle whose all the angles are acute, that is greater than 0 but less than 90, is called acute angle triangle. अब angles के basis पर triangles को किस तरह से classify किया गया? सबसे पहले acute angle triangle जिसके तीनों ही angles 90 degree से कम होते हैं. Right angle triangle, a triangle whose one of the angles is a straight angle, that is 90 degree, is called a right angled triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या है, जिसमें एक जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए. Obtuse angle triangle, a triangle whose one angle is obtuse, that is greater than 90 but less than 180, is called an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 से वो कम होना चाहिए. ओके चलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स बताने हैं. ट्राइंगल्स विद लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड्स डिफरेंट है, दैट मीन्स ये स्केलिन ट्राइंगल है. ओके नेक्स्ट इज ट्राइंगल ABC विद AB 7, AC 7 एंड BC, टू साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये आपका कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके चिल्ड्रन चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज अ स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके इससे आप खुद करेंगे. देखिए दो साइड्स इक्वल हैं तो इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस. तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, स्केलिन. एंड तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल. तीनों ही एंगल देखिए 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक 90 डिग्री का है राइट एंगल ट्राइंगल एंड एक आपका 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. Quadrilaterals. We know that any four-sided polygons is called quadrilateral. The basic elements of a quadrilateral are sides, angles, diagonals, vertices, interior and exterior parts, etc. Now we will study the types of quadrilaterals. Quadrilaterals जिसकी चार sides होती हैं, चार vertices होते हैं, okay? Angles होते हैं चार, diagonals होते हैं, right? तो quadrilateral के types क्या हैं? सबसे पहले quadrilaterals are of many types depending upon their sides, angles and diagonals. Let's study them. Parallelogram. A quadrilateral in which the pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram. वो quadrilateral जिसकी opposite sides parallel होती हैं उसे कहते हैं parallelogram. तो properties क्या हैं parallelogram की? Opposite sides are equal and parallel. That is AB is equals to DC, AB is parallel to DC, AD is equals to BC, AD is parallel to BC. Opposite angles are equal. Angle A is equals to angle C, angle B is equals to angle T. Diagonals bisect each other, that is AO is equals to OC, BO is equals to OD. Diagonals are not equal. AC is not equal to BD. Parallelogram में देखिए opposite sides equal होती हैं. AB बराबर होगा DC के तो AB पैरेलल भी होगा DC के. इसी तरह से AD जो है वो इक्वल होगा BC के एंड AD इज पैरेलल टू BC. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल D बराबर होगा एंगल B के, बट इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे. AC इज नॉट इक्वल टू BD और इसके जो डायगोनल्स है वो पॉइंटों पे बाइसेक्ट करने इस तरह से कि AO बराबर है OC एंड BO बराबर है OD. ओके चलिए नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अ क्वाड्रिलेटर इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसमें हर एंगल आपका 90 डिग्री का होता है. तो इसकी प्रॉपर्टीज है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, यानी कि एंगल ए बी सी डी सारे 90 डिग्री के हैं. ओके बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. अब इसमें क्या है कि इसके दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज AO is equals to OC, BO is equals to OD.
नेक्स्ट इज रोम्बस, अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स this side, this side, this side, and all four sides are equal. Okay, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Opposite angles are equal. यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल D बराबर होगा एंगल B के. Okay. Diagonals bisect each other. Diagonals are perpendicular to each other. इसके जो diagonals होते हैं वो perpendicular होते हैं एक दूसरे के. Diagonals are not equal. और इसके भी जो diagonals है वो equal नहीं होंगे. Next is square, a quadrilateral in which all the sides are equal and each angle is a right angle is called a square. Square की भी चारों sides equal होती हैं, चारों ही angles आपके 90 डिग्री के होते हैं. So properties क्या है square की? All sides are equal, opposite sides are parallel, all the angles are right angles, diagonals bisect each other, diagonals are perpendicular to each other, both the diagonals are equal. अब स्क्वायर के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं. ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती है रोम्बस के, बट रोम्बस में क्या होता है, डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं. स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होते हैं. ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. देखिए ट्रेपेजियम आपका इस तरह से होता है कि एक पेयर जो होता है आपका साइड्स का वो पैरेलल होता है. तो ये जो ये साइड्स हैं ये उसके पैरेलल होती हैं. प्रॉपर्टीज क्या है ट्रेपेजियम की? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, opposite angles are not equal and diagonals are not equal. Isosceles trapezium, a quadrilateral in which a pair of opposite sides is parallel and the other two sides are equal is called an isosceles trapezium. अच्छा, isosceles trapezium है जिसमें एक साइड तो parallel होगा, एक जो opposite sides होंगी वो तो parallel होंगी, right? लेकिन इसकी जो दो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो ऐसे ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. तो प्रॉपर्टीज क्या है? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए डी बराबर होगा बी सी के, बट द डायगोनल्स आर इक्वल. बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों ही डायगोनल्स जो है इक्वल होंगे. पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ इक्वल साइड्स एंड द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल. अब जो पेयर होगा इंटीरियर एंगल्स का, जो कि होंगे आपके बीच में किसके? पेयर ऑफ इक्वल साइड्स एंड पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वो इक्वल होंगे. काइट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट. काइट कैसे कहते हैं? जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं. तो प्रॉपर्टीज क्या है काइट की? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी बराबर है ए डी के एंड बी सी बराबर है सी डी के. डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसके जो डायगनल्स है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. कीप इन माइंड द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360. आपका कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे रेक्टेंगल, चाहे ट्रेपेजियम, चाहे रोम्बस, चाहे पैरेललोग्राम, सबके चारों एंगल्स का सम 360 ही होगा. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल फिगर्स. ओके, सबसे पहली फिगर आपकी क्या है? देखिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये है आपका काइट. एंड इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या होगा? चारों साइड किसकी इक्वल होती हैं? क्या ये स्क्वायर है? ऑफ कोर्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज द फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू एंड फॉल्स. आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. चलिए बढ़ते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स की तरह, सॉलिड शेप्स. So far we have studied about two-dimensional shapes, that is the shapes which have only two dimensions, length and breadth or thickness. For example, triangle, square, rhombus, etc. are two-dimensional shapes. But most of the things around us are three-dimensional, that is they have three-dimensional length, breadth and height. अभी तक हमने जिनकी बात की थी वो आपके थे two-dimensional shapes, और अब हम three-dimensional shapes के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनमें से three-dimensional होती हैं. So types of 3D shapes, cuboid. A 3D shape whose length, breadth and height are different is called cuboid. Properties of cuboid: it has 6 rectangular faces, it has 12 edges and 8 vertices. Some examples of cuboid: matchbox, geometry box, lunch box, etc. अच्छा, cuboid देखिए, आपके cuboid में 6 rectangular faces होते हैं, 12 edges होते हैं and 8 vertices होते हैं, और इसकी length, breadth, height तीनों ही different होती हैं.
cube. A cuboid with equal length, breadth and height is called a cube. क्यूब एक्चुअली आपका वो क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही इक्वल होती है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 12 इक्वल साइड्स होती है एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. Cylinder. A cylinder is one of the most basic curvilinear geometrical shape. It looks like a pipe. जैसे आपका पाइप होता है ना, like this. आपका सिलेंडर इस शेप का होता है. ओके, सो प्रॉपर्टीज क्या है सिलेंडर की? इट हैज़ नो कॉर्नर और वर्टेक्स. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसकी कोई भी वर्टेक्स नहीं होते, यानी कॉर्नर नहीं होते हैं. इट हैज़ 2 प्लेन फेसेस विच आर सर्कुलर. इसके 2 प्लेन फेसेस होते हैं जो कि होते हैं आपके सर्कुलर. These faces are called top and base. It has 1 curved face and 2 circular edges. The distance between top and base face is called length or height of the cylinder. जो इसका top face और जो base face होता है उसका जो distance होता है that is called the height of the cylinder. Sphere, a complete round surface which resembles a ball is called a sphere. एक ball की तरह इसका shape होता है, उसे हम कहते हैं sphere. तो properties क्या है sphere की? It has 1 curved face. इसका सिर्फ एक ही curved face है and it has no vertex and no angle. ना कोई इसका वर्टेक्स होता है, ना ही इसका कोई एज होता है. दोबारा बोलती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेयर. अब स्फेयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसका एक कर्व्ड फेस होता है, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, ना ही कोई एज. कोन. अ कोन इज सॉलिड ऑब्जेक्ट विद सर्कुलर बेस व्हिच टेपर्स टू अ पॉइंट. देखिए आपका कोन इस तरह से होता है, राइट. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज अ प्लेन सर्कुलर बेस एंड अ कर्व्ड फेस. इट हैज 1 वर्टेक्स एंड 1 एज. इसका एक वर्टेक्स होता है और एक एज होती है. कुछ एग्जांपल्स है कि आपके कोन की आपने देखे होंगे, जैसे बर्थडे के आप और जो आइसक्रीम आप कोन लेके खाते हैं, राइट. प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म. अ प्रिज्म इज अ सॉलिड whose lateral faces are rectangular and bases are congruent triangles. Congruent का मतलब होता है एक जैसे. इसका क्या होता है कि जो आपका इसका जो lateral faces होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, जो bases होते हैं वो इक्वल होते हैं. Properties of prism. It has 6 vertices and 9 edges. It has 5 faces, 2 triangular bases and 3 rectangular lateral faces. Pyramid. A pyramid is a solid object whose base is a plain rectilinear figure and whose side faces are triangle having a common vertex which is called vertex of the pyramid. The side faces of a pyramid are called its lateral faces. अब pyramid क्या है? आपका एक solid object है जिसका जो base है वो एक plain rectilinear figure है और जिसकी जो side faces हैं वो triangles है जिनका एक common vertex होता है. Square pyramid. A pyramid with square base and rectangular lateral face is called a square pyramid. Square pyramid में क्या होता है? Square base होता है जबकि उसका जो lateral face है वो आपका होता है triangular. Okay? Okay, next is प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर पिरामिड की? इट हैज़ 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस. इट हैज़ 5 फेसेस, 1 स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस. नाउ ट्रायंगुलर पिरामिड और टेट्राहेड्रन. A pyramid whose base is a triangle and has triangular faces is called triangular pyramid. Pyramid जिसका base triangular है और उसके faces भी triangular है. Okay, so what are the properties of triangular pyramid? It has 6 edges and 4 vertices. It has 4 faces, 1 triangular base and 3 triangular lateral faces. Let's have a look at the 3D shapes. Okay, अब आपको यहाँ पे सारी 3D shapes दे रखी हैं, उनके नंबर ऑफ फेसेस बता रखे हैं और ये भी बता रखे जो नंबर ऑफ फेसेस हैं whether they are rectangular और स्क्वायर और किस तरह के हैं, राइट. इसके बाद है नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस. रिमेंबर दैट अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन. ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. देखिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं शेप्स को और उनके एजेस, फेसेस और वर्टिसेस लिखना है. ओके, देखिए आपके पास ये है सारी, ये टेबल आपको बनी है, इसमें सब कुछ आपका मेंशन्ड है, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस एंड उसके बाद आप इसे आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग. फुटबॉल. फुटबॉल कौन से शेप की होती है आपकी? स्फीयर. एंड ऑयल फनल. ऑयल फनल अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये इस ऐसे होता है, इस तरह से, एंड ये इस तरह से. सो इट इज कॉनिकल इन शेप. सुकून. Overview. Magnitude of an angle does not depend upon the length of the arms of the angle. एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एंगल के आर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड राइट एंगल इज इक्वल टू 90. एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड राइट एंगल 90 डिग्री का.
Two lines in two different planes which are neither parallel nor intersecting are known as skewed lines. Skewed lines आपकी वो होती है जो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है. A transversal line intersects two or more parallel lines at distinct points. Transversal दो या दो से ज़्यादा parallel lines या non parallel lines को intersect करती है. Perpendicular lines intersect each other at 90 degree and perpendicular line हमेशा 90 degree पे intersect करते हैं. Triangles can be classified on the basis of angles as acute angled, right angled and obtuse angled triangle. Triangle को अगर angles के basis पे divide करें, classify करें तो आपके acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. Triangles can be classified on the basis of sides as scalene, isosceles and equilateral triangle. And size के basis पे आपके triangle होते हैं scalene, equilateral and isosceles. The sum of all the three angles of a triangle is 180. Triangle के तीनों ही angles का sum 180 होता है. Quadrilaterals can be categorized as a rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium, etc. on the basis of their properties. Quadrilateral यानी जिसकी चार sides होती हैं तो properties के basis पे quadrilaterals आपके होते हैं square, rectangle, parallelogram, rhombus. The sum of all the four angles of a quadrilateral is 360. Quadrilateral के चारों ही angles का sum 360 होता है. A square pyramid has 8 edges, 5 faces and 5 vertices, while a triangular pyramid has 6 edges, 4 faces and 4 vertices. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.